Hello everyone, today we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of future perfect continuous tense, because previous class we have finished that rule of distinguish the sentence and rule of making the sentence of future perfect continuous tense. In rule of distinguish the sentence we have read that जिस वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता रहा हूँगा, हम लोग गाना गाते रहे होंगे, राधा कथक नाचती रही होगी। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, I will have been going to market, we will have been going to market, you will have been going to market, you will have been going to market, he, she will have been going to market, they will have been going to market. Like that we have read in previous class. So today our duty is that how to change interrogative negative and interrogative plus negative. So my example is that assertive, I am taking the example. The example is that you तुम अंग्रेजी सीखता रहा होगा, you will have been learning English. If I am taking example, तुम अंग्रेजी सीखता रहा होगा, then you will have been learning English. You will have been learning English. तुम अंग्रेजी सीखता रहा होगा. Very simple. Only you have to focus the rule, and already you know that rule is that subject plus will have plus been plus before plus object. So making interrogative, what you do here, will, have and been, three auxiliary verb, that means helping verb are available, but you have to work with only the will. So that for making interrogative, what you do, firstly you have to write will, after then you have to repeat all the sentence. That means will you have been learning English. Will you have been learning English? Finished. And this is the interrogative sentence, so you must put the question mark. For making negative, what you will do, very simple. Already I have told you that whenever you make the negative, then you have to add the which one, not in will. Then two forms are available, willn't or won't, but we are using the won't, so I can write here you won't have been learning English. You won't have been learning English. This is the negative, so that don't put the question mark. And for making interrogative plus negative, what you do here, won't is available, so you have to write first won't. After then you have to repeat all the sentence. That means what will happen? Won't you have been learning English. Won't you have been learning English? Like that you can change assertive to interrogative to negative and interrogative plus negative. So let's we discuss in हिंदी. जब हिंदी में बात करते हैं तो आप assertive से interrogative कैसे बनाइएगा, तो ध्यान रहे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना कोई भी एग्जांपल रहे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, एनी नेम, ये सेम रूल होगा, विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ विल हैव बीन मिलेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव बनाना रहे तो विल में काम करेंगे, हैव और बीन को जहां है वहां छोड़ देंगे। यही कारण है कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए मैं क्या किया, विल को बाहर निकाला, बाकी बात को छाप दिया। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, मैं इस विल में क्या किया, नोट जोड़ दिया। तो दो फॉर्म में बताया था ना, विलिंट या वांट होता है, तो दोनों में से कुछ भी मिले, लेकिन हम लोग वांट यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ वांट लिख दिया, बाकी बात को छाप दिया। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या किया, वांट को बाहर निकाल दिया। यदि यहाँ विलिंट रहेगा तो विलिंट को बाहर निकालेंगे, बाकी बात को क्या कर देना है, छाप देना है, और जहां जहां इंटरोगेटिव रहे वहां क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो इस तरह से आप ना इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आराम से बना सकते हैं। और एक चीज बोल दूं, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत ही आसान है, बट आप ध्यान रखिएगा रूल को। तो हिंदी क्या कहता है, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखता रहा होगा। विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखता रहा होगा। यू वोंट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीखता रहा होगा। वोंट यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखता रहा होगा। तुम अंग्रेजी सीखता रहा होगा, क्या तुम अंग्रेजी सीखता रहा होगा। तुम अंग्रेजी नहीं सीखता रहा होगा, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखता रहा होगा। इंटरोगेटिव दैट मींस क्या, नेगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या और नहीं दोनों रहता है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं पेड़ लगाता रहा हूँगा,
मैं पेड़ लगाता रहा हूँगा, आई विल हैव बीन प्लांटिंग ट्री। क्या मैं पेड़ लगाता रहा हूँगा, विल आई हैव बीन प्लांटिंग ट्री। मैं पेड़ नहीं लगाता रहा हूँगा, आई वोंट हैव बीन प्लांटिंग ट्री। क्या मैं पेड़ नहीं लगाता रहा हूँगा, वोंट आई हैव बीन प्लांटिंग ट्री। Like that you can take lots of examples. So you have to increase your fluency because we are going to finish the tense. After that tense we have to start the spoken, so that be careful about the rule, and you have to careful about the each and every tense, then you can improve your English bit by bit. So now let's start rule of making sentence of future perfect continuous tense. For the WH form of future perfect continuous tense, I am taking one example. The example is that AJST, तुम अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा, then you will have been teaching English. You will have been teaching English. So for making WH form, what you will do, your duty is that first you have to make interrogative, and this is the very simple. So you have to write first will, after then you have to write all the sentence. That means will you have been teaching English, and you must put the question mark because this is the interrogative sentence. After then what you will do, for making WH form you have to add all the WH form before the will, or we can say before the interrogative sentence. So I am using the what. So what will you have been teaching? What will you have been teaching? This is the question mark, and you must remember the whenever you take what, then you have to leave the object, because what is asking about the object. After then where, then what will happen, where will you have been teaching? Where will you have been teaching English? So if I take when, then spelling is wrong, so WHERE, where. So when will you have been, when will you have been teaching? This is the C, not E, careful. This is the C, not E, teaching English. If I take why, then why will you have been, why will you have been teaching English? If I take how, then how will you have been teaching English? And our last WH form, who, then what will happen, who will have been teaching English. Like that you can make the WH form of future perfect continuous tense. So let's we discuss in Hindi. So कैसे बनाएंगे WH form? तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, उसके बाद क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जैसे मेरा एग्जाम्पल क्या है, यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तो मैं क्या किया, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस विल को बाहर निकाल दिया, बाकी बात को छाप दिया। उसके बाद विल से पहले अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले सारा WH फॉर्म मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु को क्या कर देना है, छाप देना है। छापने के बाद ध्यान रहे कि व्हाट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि व्हाट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। वेयर लीजिएगा तो प्लेस, व्हेन तो टाइम, व्हाई हाउ रहेगा तो रीजन छोड़ देना है, और हु रहेगा तो सब्जेक्ट। यही कारण है कि सभी वाक्य में आपको यू देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यू किसका रोल अदा कर रहा है, सब्जेक्ट का, बिकॉज यू नो दैट हु इज आस्किंग अबाउट द सब्जेक्ट।
सो इस तरह से आप WH फॉर्म बना लीजिएगा। तो चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या बोलता है, यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। व्हाट विल यू हैव बीन टीचिंग, तुम क्या पढ़ाता रहा होगा। वेयर विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ाता रहा होगा। व्हेन विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तुम कब अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। व्हाई विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। हाउ विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तुम कैसे अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। एंड हु विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, कौन अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। तुम अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। तुम क्या पढ़ाता रहा होगा, तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ाता रहा होगा। तुम अंग्रेजी कब पढ़ाता रहा होगा, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहा होगा, तुम अंग्रेजी कैसे पढ़ाता रहा होगा, और कौन अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। लाइक दैट यू कैन टेक लोट्स ऑफ एग्जांपल। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। जैसे तुम पत्र लिखता रहा होगा, इन्फ्लुएंट हाउ, तुम अंग्रेजी पढ़ाता रहा होगा। यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, व्हाट विल यू हैव बीन टीचिंग, वेयर विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, व्हेन विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, व्हाई विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, हाउ विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, हु विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। Suppose that I am taking one more example. तुम पेड़ लगाता रहा होगा, you will have been planting tree, will you have been planting tree, what will you have been planting, where will you have been planting tree, when will you have been planting tree, why will you have been planting tree, how will you have been planting tree, and who will have been planting tree. Like that you have to speak influent your, you have to increase your fluency, then you can improve your English. तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पढ़ते रहिए और टेंस को पूरा का पूरा क्लियर कीजिए। हाँ, बारिश का मौसम है, आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप क्लास करते करते भी उसके साउंड कुछ वीडियो में आ जाए तो आप उसको देख के बरसात का आनंद लीजिए, क्योंकि वर्षा का मौसम भी एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है, क्योंकि इसी से हम लोग अपना जीवन यापन, खेती बाड़ी, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, जो कृषि पर निर्भर है। तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा कि कृषि नहीं होगा तो हमारा काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते इंग्लिश आपको सीखनी है, तो आपको टेंस को अच्छा करना है। जैसे किसान खेत में दिन रात मेहनत करके अनाज उपजाता है, तो उसी प्रकार आप लोग को भी क्या करना है, इंग्लिश को अच्छे से करना है, ग्रामर सेक्शन को। क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है आपका मैन टू मैन टॉक की मैं बात कर रहा था, आमने सामने दो व्यक्ति मिलके कैसे बात कर रहे हैं, वो मैं अगला क्लास में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका टेस्ट दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैन टू मैन मैं शुरू करूंगा। तो मैं उम्मीद करूं ये टेंस क्लियर हो गया होगा आपका, नहीं किए हैं तो इसको अच्छे से कर लीजिए। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।